ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਵਿਪਨ ਸੁਮਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। Start the event with the Air India introduction. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਇਵੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਚੂਜ਼ ਐਨੀਵਨ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ yourself and a unique number so that if there are two students with the same name we can distinct in the later one. So with the next performer we have Mr. Ombak Priya. Kindly join. Hello everyone, my name is Ombak Priya. I am a theatre student, third year, and I'm going to speak on the topic role model and icons. I'm going to do a storytelling. It's not a complete storytelling, it's just like my interpretation. So I was in class 12th and the class 12th was about to get finished, and just like normal students I had no idea what I was going to do in the future life. I had no idea. Yes, I was good in music, but I was not very serious about it. I just thought that I can't make it, I'm not that good. So I was just thinking about my future, and I thought, you know what, let's leave everything, let's watch a movie. And I was already interested in acting, music, and then I saw Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street. And when I watched that movie, I just finished it and I said, I want to become an actor, and I just chose the theatre course and I came to LPU University. I came here, I spent like 6 months learning acting and all, but there was something missing. I thought that I'm not complete, I need something. It was not, acting is just not the thing that I want to do, there is more. And then I discovered Krishna is a rapper. I discovered hip hop. Actually I used to listen to hip hop from class 11th only. I used to listen to Eminem and all, but I never connected to Eminem like I connected to Krishna, because Krishna was an Indian rapper and he used to speak in Hindi. And when I heard someone speaking in his mother tongue, I connected to him a lot, and the connection was just next level. I started watching his interview. I was like, you can say I was obsessed with him. I watched his interview, I watched how he raps, I saw his techniques and all. And then I thought that maybe I was good at singing, though I was never good at rapping. I thought maybe I can also rap. And then I started writing. And it was the first time that I started writing, when I heard Krishna. And Krishna is a kind of a rapper who writes very lyrical rap. And I was into that only, because Eminem is that kind of rapper. The first time when I wrote the song, I realized that I'm not just an actor. I can do music, I can do a lot. This is the field I should be in. I should do rap and I should do acting at the same time. This is the effect of role model or an icon. It's like human psychology. Every person needs a leader in their life, because if you have a leader, if you know someone that he is at this stage, you know exactly what you have to do to reach there, because you have been observing them. And when I observed Krishna, when I observed Leonardo DiCaprio, I tried to imply my rapping style only. And then I discovered one thing, that if you see something and try to imply in your real life, you will do wonders. But if you are a kind of person who is obsessed with someone, you keep listening to Krishna rap, you just keep watching Leonardo DiCaprio movies, it won't help until and unless you imply it in your real life. So because फल भी उसी को मिलता है जो कर्म करता है. That's it. Thank you so much. It was a very enlightening performance by you, Mr. Ombak. Thank you for that. And like it says in the Gita, like karm kar, phal ki chinta mat kar. It was very much relating to that. Like we all have our youth icons. Like for me, it's Pitbull. Not because I look like that, but I like the rapping of them. So furthermore, to continue the performances, we have Mr. Harkamal. Kindly join. An applause, please. Good morning to everyone. My name is Harkamal Prisik. I'm from MA Theatre.
मेरा टॉपिक है ड्रीम इंडिया, और यकीन मानिए ये स्टोरी है या कह लो कि मुझे लगता है कि इससे हम सभी रिलेट करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हमारे बड़े ज़रूर करेंगे। जैसे ख्वाब क्या है, हमारे देश का ख्वाब क्या है, कैसा होना चाहिए। आज़ादी के पहले जब दोनों देश एक होते थे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक होते थे, और सभी के रिलेशंस एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। जो सिख फैमिली है या कोई भी, मुझे लगता नहीं था कि धर्म के नाम पे वो एक दूसरे से हेट करते थे या कुछ भी करते थे, है ना। तो सभी इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के साथ जीना, सब कुछ मरना, सब कुछ एक ही था उनका। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो दोनों एक ही, कह लो कि एक ही चपाती के दो पीस कर दिए गए, हाफ हाफ कर दिया गया, और उसको नाम दे दिया गया पाकिस्तान और भारत, इंडिया। दो नामों में बांट कर एक ही चीज को हमें परोस दिया गया और हम अलग अलग हो गए। किस पे? धर्म के नाम पे। एक जो सिख थे, हिंदू थे, इधर आ गए, पाकिस्तानी जो मुस्लिम थे वो वहां चले गए, पाकिस्तान में रह गए। लेकिन इसके साथ जैसे कि हम अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि बहुत सी जमीनें पाकिस्तान में हैं, कईयों की हिंदुस्तान में है। मैं अटारी के नियर रहने वाला हूँ, सर लाहौरी मल मेरा विलेज है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे इधर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो वहाँ जाते हैं, खेती करने जाते हैं किसी न किसी तरीके से, और वापस आते हैं। उसे मैं कैसे, अगर मैं थिएटर का स्टूडेंट हूँ तो कल को मुझे इसी चीज़ को थिएटर में लेके आना हो, मुझे खुद परफॉर्म करना हो, इसे अपने जज्बातों को स्टोरी में, स्टोरी को बाद में स्क्रिप्ट में लेके उसे परफॉर्म करना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे करूंगा उसे। तो मैंने इसे ऐसे लिया कि देश विभाजन के पहले दो दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, बहुत फैमिलीज होती हैं। जब देश विभाजित हुआ तो जो मुस्लिम थे, फैमिली थे, वो पाकिस्तान रह गए, जो सिख और हिंदू थे वो इंडिया आ गए, भारत आ गए। लेकिन जो उनके रिलेशन थे कभी खत्म ही ना हो पाए, कभी भी खत्म नहीं हुए। तो वो क्या हुआ कि एक फैमिली है, मान लीजिए एक सरदार है या हिंदू है और दूसरी तरफ मुस्लिम है, तो विभाजन के बाद भी वो एक दूसरे से बात करते हैं। पहले टेलीग्राम्स होते थे, फोन बहुत अभी जाके आए हैं, तो एक दूसरे को चिट्ठियां भेजना, ठीक है। दो छोटे दोस्त हैं, मान लीजिए वो अलग हो गए हैं, तो अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। मिल नहीं सकते हैं, जिस बात उनके अंदर है मिलने के, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते हैं, हालचाल पूछते हैं। ऐसे समय गुजरता जाता है और फिर फोन पे बात करने लगते हैं, और देखते देखते वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, ठीक है। जो मुस्लिम परिवार का लड़का होता है उसकी भी फैमिली होती है, जो उसका एक लड़का होता है और बीवी होती है, एक भाई होता है, ठीक है। और ऑन द अदर साइड इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि जो दूसरा हिंदू होता है उसकी भी एक फैमिली होती है, जिसमें उसकी बीवी आ जाती है, उसका बेटा आ जाता है, उसकी लड़की आ जाती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो समय गुजरता है और बात आती है कि जो उधर का लड़का भी, जैसे कहते हैं ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे, तो कुछ ऐसा ही सीन मैंने सर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की कि दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदला जाए। तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आता है, पाकिस्तान का दोस्त फोन करता है कि देखो भाई, ऐसे मेरा भी बेटा जवान हो गया है, हमारे भी एक दूसरे को जानते हैं सभी, क्यों ना, और मैं तेरी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं, तूने अच्छा पढ़ाया लिखाया है उसे, क्यों ना हम एक रिलेशन मेंटेन कर लें, क्यों ना मेरे बेटे से तो अपनी बेटी की शादी करवा दे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान भेजूं या ना भेजूं, इतनी दूर है, वापस आना हो या ना आना हो कौन जानता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं सबसे बात करके फिर डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कुछ समय बाद वो सबसे बात करता है, अपनी बीवी से करता है, अपने बड़ों से करता है, तो ठीक है, वो भी जानते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन अच्छे हैं, तो वो हाँ कर देता है, ठीक है। वो बोल देता है कि ठीक है, आप आ जाइए, हम शादी कर लेते हैं। तो कुछ समय के बाद वो बारात लेकर आते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। वो अपनी बेटी को विदा करते हैं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान चली जाती है। अभी वो तो पाकिस्तान चली गई, उनका अपना एक परिवार हो गया, ठीक है। बेटी का इधर आना बेचारी का नहीं हो पा रहा है, ठीक है। समय गुजरता जा रहा है, एक वक्त आता है जब बेटी को बेटा होता है, मतलब उनके घर एक लड़का होता है, ठीक है। तो वो लड़का जैसे जैसे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब वो यहाँ पे खबर देते हैं अपने हिंदुस्तान में कि इससे बेटा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वो वहां जा नहीं पाते। कोई स्ट्राइक्स ले लो, आपको पता है कि यही तो होता रहा है, कभी दंगे इधर हो गए, कभी इधर हो गए, है ना। तो किसी कारण वो तो मिलने जा ही नहीं पाए, जैसे हम कहते दादा वगैरह जी, ये रिश्ते वहां जा ही नहीं पाए। हिंदुस्तान से वो परिवार अपने लड़की के बेटे को देखने के लिए जा ही ना पाया। समय गुजरता गया, उसका नाना जो है
उसे कहानियां सुनाता था कि कैसे हम जब इकट्ठे रहते थे, मैं और तेरा दादा ऐसे घूमा करते थे, एंजॉय किया करते थे, ऐसे इकट्ठे। अगर जैसे हिंदुस्तान में कोई जो हिंदू फैमिलीज होते हैं, जगराते होते हैं, कितना हम दोनों एक दूसरे की फैमिलीज में जाया करते थे। अगर हमारे कुछ हो रहा है, अगर हिंदू फैमिली में जगराता हो रहा है तो हम जाते थे, अगर हम मुस्लिम में कोई ऐसा कर्म करते थे तो हम सभी शरीक होते थे वहां पे जाके। तो ऐसे करके वो अपने जो छोटे बच्चे को बताता रहता है, ठीक है, और उसके मन में जिज्ञासा आने लगती है कि यार काश वो समय फिर आ जाए, काश मैं क्यों ना वो मैं भी समय देख पाऊं, वो पल मैं भी देख पाऊं। तो वो अपनी मम्मी को, अपनी दादा को वो कहता रहता है कि अपनी नाना को वो कहता रहता है कि दादा कहता रहता है कि मैंने भी जाना है, मैंने भी हिंदुस्तान जाना है, मुझे लेके चलो, मैंने अपने नाना से मिलना है, नाना ही होता है ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मैंने अपने नाना से मिलना है, नानी से मिलना है, अपने जो भी मामू से मिलना है। तो उसकी जिद बढ़ती जाती है। जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो वो अपने दोस्तों से जब बातें करता है, जब वो देखता है कि यार इनके इतने रिलेशंस हैं, इतनी चीजें हैं और मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं मिस कर रहा हूं अपने सभी को। वो छोटे से बच्चे में जो बढ़ता जा रहा है उसमें जिज्ञासा आने शुरू हो जाती हैं, उसमें फीलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने जाना है, बस मैंने उनसे मिलना है, मैंने भी वो जिंदगी जीनी है जो दादू बताया करते थे कि हम इकट्ठे हैं, हम सब कुछ एक था, कोई भी वो नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था धर्म को लेके, किसी बात को लेके। तो क्या होता है कि उसकी जिद बढ़ती जाती है। एक दिन बच्चा सोता सोता अपनी माँ के पास बैठा होता है तो ऐसे कह रहा है कि माँ क्या तुम्हारा दिल नहीं करता है वहां जाने को? तुम अपने पापा से नहीं मिलना चाहती हो? क्या हम माँ वहां नहीं जा सकते? क्या हमारा ये देश फिर से एक नहीं हो सकता? और ये कहता कहता वो सो जाता है, ठीक है। वक्त गुजरता जाता है तो फिर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है अचानक से कि दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इधर भी स्ट्राइक्स, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है कि दंगे फसाद होने शुरू हो जाते हैं, कोई भी इधर उधर जा नहीं पाता है। तो दोनों मंत्री हमारे देश के, पाकिस्तान का भी और हमारे देश का भी, इकट्ठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जो उग्रवादियों ने हम पर हमले किए हैं, क्योंकि देखो जब भी टेररिज्म आता है तो हमारा देश उन पे कीचड़ उछालता है और वो हम पे उछालते हैं। हालांकि कसूर हो सकता है किसी का ना हो एक बीच में, कहते हैं ना कि दो में से जो बिचला होता है ना वो फायदा उठा लेता है। तो इसी चीज पे डिस्कशन करने के लिए वो एक मीटिंग करते हैं, दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक मीटिंग में बैठ जाते हैं, ठीक है। वो बातें करते हैं कि कैसे क्या किया जाए। कि वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम कमजोर हैं। हिंदुस्तान कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्या किया जाए, वो एक दूसरे पे दोष लगाने से अच्छा है क्यों ना एक कंट्री हो जाए, क्यों ना एक देश हो जाए, ठीक है। अभी सवाल ये आ गया कि अगर दो देश हो जाएंगे तो फिर भी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो यही है ना, फिर धर्म आ जाएंगे, फिर एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, अगर दोनों देश एक होंगे फिर नाम क्या देंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा कि नाम क्या दिया जाए कंट्री को, है ना। अगर हिंदुस्तान दे देंगे तो फिर वही बात रह जाएगी कि यार ये तो हिंदुस्तान है, हमारा कहाँ है? तो क्या हुआ कि दोनों के डिस्कशन से क्या डिसाइड हुआ कि हम क्या नाम रखेंगे? पाकीज़ा हिंदुस्तान, पाक पवित्र हिंदुस्तान, इसका अर्थ होता है हमने पाकिस्तान का पाक ले लिया और हिंदुस्तान को पूरा रख लिया, पाकीज़ा हिंदुस्तान। तो भाई ये डिसाइड हो गया कि ठीक है दोनों देशों को अब एक कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों देशों को एक कर दिया गया, वक्त गुजरता गया। अभी उस बच्चे को भी मौका मिला अपने दादा के पास जाने का, ठीक है, अपनी नाना के पास जाने का, अपने मामू को मिलने का। वो फिर सभी तैयारियां करते हैं जाने के लिए, वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ घूमते फिरते हैं, जो भी अपने दादा के साथ वो जो खेल खेलते हैं, घोड़ी पे बैठ के कुछ भी करना है ना, तो उसमें वो भी जो पाठ वगैरह होते हैं उसमें भी वो गया, सब एंजॉय किया, उसने उधर के लोगों को देखा, उसने अपनी दोस्तियां बना ली लोगों से। छोटे से बच्चे ने ऐसे सरदार से बना ली, हिंदू से बना ली, सबसे अलग अलग बच्चों से उसका एक अलग रिलेशन जुड़ गया, ठीक है, रिलेशन जुड़ गया। और उसका मन नहीं था वापस आने का, ठीक है, सारा परिवार एक है, तो अभी वो उसका मन नहीं होता है कि अभी जाना है, क्योंकि एट द लास्ट उसे जाना तो पड़ेगा ही अपने पास पाकिस्तान में, मतलब एक ही देश में अपने घर जाना होता है। तो वो क्या करता है कि ऐसे कर रहे होते हैं तो वो जिद करने लगता है कि मम्मा नहीं, अभी हम यही रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मम्मा भी अब हम नहीं रहेंगे, अब यही रहेंगे। वो सोता ऐसे कर रहा होता है तो मम्मी से उठा रहे होते हैं, उठ बेटा स्कूल नहीं जाना है। ये उस बच्चे का ख्वाब होता है
वो ख्वाब में देखता है कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। रियलिटी ये होती है कि वो वहीं पे ही होता है, अपने दादा के पास ही होता है, और जब उसे मम्मी उठाती है तो फिर वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि यार मैं तो अभी भी यहाँ पे हूँ, मुझे लगा था कि हमारा देश एक हो चुका है, हमारी फैमिली बन चुकी है। तो ये इसका एक ख्वाब ही रह जाता है। सो थैंक यू दोस्तों। मिस्टर हरकमल के ख्वाब को अभी हम सबने ज़ुबानी से सुना, और इस पे एक लाइन याद आती है कि वो वक्त था कितना हसीन जब एक थी हमारी ज़मीन। सो विद नेक्स्ट we will start our next performance by Miss Priyanshi. Kindly join the stage. Good afternoon. My name is Priyanshi Sharma. I am pursuing Bachelor's of Physical Education from Lovely Professional University. Today I am here to express my views on the new She, a futuristic view of an empowered Indian girl under the program Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is celebrated by India after completing 75 years of independence. So let's begin. एक नारी की हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन काल से ही वह पूजनीय एवं देवी का रूप में मानी जाती है। सुख संपत्ति, धन दौलत, समृद्धि भी वहीं आती है जहां नारी का वास होता है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसमें हमारी भारतीय नारी का कितनी अहम भूमिका निभाई थी। जैसे सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, सुचिता कृपलानी आदि, इन्होंने बिना डरे अपनी जान पर खेल के हमारे भारत देश को आजाद कराया था अंग्रेजों से। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय नारी को वोट का अधिकार दिया ताकि वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सके। जबकि अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, उसने 200 वर्ष बाद यही अधिकार अपनी महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को दिया। भारतीय नारी विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा एवं राजनीति में भी बहुत आगे है। नारी शक्ति के फल स्वरूप भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित, प्रतिभा पाटिल, मायावती, ममता बनर्जी आदि ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जैसे पदों को सुशोभित किया है। यही तक नहीं, हमारी नारी शक्ति उभरते हुए कमर्शियल पायलट एवं जेट फाइटर पायलट बनकर हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय नारी को सेना में भी प्रदर्शन मिल चुका है। उसके लिए वहां के द्वार भी खोले जा चुके हैं। वह वहां जाके अपनी हमारी सीमा की रक्षा कर सकती है और पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती है। खेलों में भी भारतीय नारी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, इन्होंने हमेशा हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा करा है। पर अभी भी दूर दराज गांव के इलाकों में नारियों को दबाया जाता है। वह दुख, दर्द और पीड़ा सहती हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज उनके परिवार पे उंगली उठाएगा, उनकी इज्जत गिर जाएगी। पर टीवी, मोबाइल, रेडियो जैसे माध्यम से उनमें भी जागरूकता फैल रही है और वह अपनी आवाज उठा रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और उभर कर आ रही हैं। तो ये है हमारी आज की नारी। इसके बाद अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगी, हमारे प्राचीन काल रामायण महाभारत की बात। वहां नारी को पूर्ण अधिकार था अपना वर चुनने का और उससे विवाह करने का। वह अपना स्वयंवर रचाती थी और अपने मन पसंदीदा वर से विवाह करती थी। ये हक अंग्रेजों के टाइम पे जो हमारी महिलाएं हैं वो अशिक्षित रह गई, उनको अपने हक से वंचित कर दिया गया। पर जब आजादी के बाद और आज की नारी में देखा जाए, उसे पूर्ण अधिकार है अपना वर चुनने के लिए और बिना किसी जोर जबरदस्ती से विवाह करने के लिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये कलयुग है तो जब जब नारी का चीर हरण होगा, वह श्री कृष्ण बनके अपनी सहायता करेगी और दुशासन जैसे राक्षस का अंत करेगी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी। काले बन के शीश काटे जब बात हो उसके सम्मान की। तो ये आज की और भविष्य की नारी है जो गलत होने पर हमेशा आवाज उठाएगी और हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखेगी। और अगर किसी ने उस पर गंदी नजर से देखने की कोशिश करी या गलत इरादों से छूने की कोशिश करी तो वह महिषासुर और दुशासन जैसे लोगों का अंत करके शक्ति कहलाएगी। धन्यवाद।
A strong performance by Ms. Priyanshi. Thank you for enlightening us with this. With the same, I can recall a quote of Malala Yousafzai. We cannot all succeed if half of us are held back. So I believe we all can agree with this, like we are equals. In the gender, in the caste, in the religion, we all are equals. So with this, we have our next performance, Mr. Inderpal. Kindly join. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और मैं बीए थिएटर थर्ड ईयर से हूँ। मेरा टॉपिक है इंडियन वैल्यूज इथोस रिविजिटिंग विलेजेस। तो एक कविता है, मैं सुनाना चाहूँगा बिना देरी किए। भारत की संस्कृति निराली, सबको देती मान सम्मान, बड़ों की सेवा सब करते हैं, छोटों से करते हैं प्यार, संस्कारों की भूमि ये है, सबको देती मान सम्मान। सुबह सवेरे माता पिता की करते हैं चरण वंदना यहाँ, आशीष पाते हैं ये बच्चे, आशीष पाते हैं ये बच्चे, जीवन में सफल हो जाते हैं, संस्कारों की भूमि ये है, सबको देती मान सम्मान। सद्गुण हर बाला में हो, सद्गुण हर बाला में हो, सदाचारी हर बालक हो, मर्यादित हर नारी हो, पुरुष आदर्शों की खान हो, संस्कारों की भूमि ये है, सबको देती मान सम्मान। वेद पुराणों ने जो बतलाया, करते आचरण यहाँ सभी, वेद पुराणों ने जो बतलाया, करते आचरण यहाँ सभी, प्रेम स्नेह मान मर्यादा को जीवन में अपनाते सभी, संस्कारों की भूमि ये है, सबको देती मान सम्मान। माँ है ईश्वर गुरु भगवान, माँ है ईश्वर गुरु भगवान, त्योहारों को मनाते मिलजुल कर, भारत की संस्कृति महान, संस्कारों की भूमि ये है, सबको देती मान सम्मान। थैंक यू। A great performance by Mr. Inderpal. So next we have Mr. Ashutosh. Kindly join. नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। मैं बीए थिएटर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा टॉपिक है भारतीय मूल और गाँव की ओर विस्थापन या रिविजिटिंग टू विलेजेस। महात्मा गांधी ने एक चीज़ कही थी कि भारत को अगर असली रूप में आपको देखना है तो आप गाँव की ओर रुख करें। मैं मेरी बात इसी से स्टार्ट करता हूँ कि असली भारत गाँवों में बसता है। वो कैसे बसता है, उसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि अपनत्व की भावना गाँवों में ज़्यादा है, खुशियाँ गाँवों में ज़्यादा है, त्यौहार मिलजुल कर गाँवों में सेलिब्रेट किए जाते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। शहरों के अंदर भी करते हैं। शहरों के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक एज ए एग्जाम्पल अपन लेके चले तो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई 500 फ्लैट्स हैं। लोग पास वाले को नहीं जानते, लेकिन गाँव के अंदर ये होता है कि हम पूरे गांव को जानते हैं। हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर अपना एक अलग कनेक्शन होता है। मेल जोल से अपन हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। किसी को अगर कोई दुख भी है तो अपन उसका दुख बांटते हैं। किसी को कोई पैसे की कमी हो या किसी भी चीज़ की कमी हो तो अपन उनसे बात करके उसका उस मुसीबत का या कोई भी समस्या का हल या निस्तारण कर सकते हैं। गाँवों के अंदर ये चीज़ होती है। संस्कृति भारत की जो मूल सिद्धांत है, भारत का भारतीय मूल जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक सोपान, वो सब हम भारतीय मूल्यों को एक साथ अगर पिरोकर चलें तो वो हमारे भारतीय मूल होते हैं, जिसमें संस्कृति भी आ गई, सामाजिकता भी आ गई और हमारा जो भी कल्चर है वो भी आ सकता है। एक चार लाइन है कि घाट घाट को पिकर पानी, मतलब ये राजस्थानी लैंग्वेज में, मैं राजस्थान से हूँ, तो चार लाइन है कि घाट घाट को पिकर पानी, मैं तो बस आई ही है जानी, मतलब मैंने घाट घाट का पिया है पानी। और ये पानी पीकर मैंने यही चीज़ जानी है कि शहर का चक्कर मोह माया है, कि शहर का चक्कर मोह माया है, रोटी तो गामा में ही खानी। अधिकतर लोग जो शहर के अंदर काम करने गए थे उनको वापस गांव की ओर रुख करना पड़ा। शहरों के अंदर बहुत महंगाई थी, कोरोना के समय बहुत चीज़ें ना मिलती थी, लेकिन गाँवों के अंदर, मैं गाँव से हूँ, गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है। अपन मान के चलते हैं खेलों के अंदर हो गया, कला के अंदर हो गया, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो गया। शिक्षा के मामले में खेलो इंडिया मूवमेंट जो गाँवों के अंदर होता है। मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में मैंने देखा है कि खेल महोत्सव होता है जिसके अंदर लाखों बच्चों को राजस्थान सरकार ने एक एक्सपोजर दिया है, एक मौका दिया है, जिसके अंदर खेलो के अंदर एक ओलंपिक की तरह चलता है। वो भारत के अंदर भी होता है और गाँवों से बहुत सारा टैलेंट निकलता है। बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे एक्टर्स जो मतलब गाँव से अपनी शुरुआत करते हैं। मैं भी एक बहुत छोटे गाँव से आज यहाँ पे आया हूँ। सिटी भी मैंने शायद ही पहली बार देखी होगी। मैं भी कुल मिला के घर पे बैठ के कर सकते हैं सब कुछ चीज़ें।
गांव के अंदर भी सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव लाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बस यही चीज़ है कि मेलजोल, अपनत्व और सांस्कृतिक, सामाजिक और जो भी हमारी संस्कृति है वो गाँव से शुरुआत होती है, और भारत का मूल जो सिद्धांत है और मूल भारतीय मूल है वो गाँव से होता है। धन्यवाद। It was an astonishing performance by Mr. Ashutosh. So next we have Ms. Laprit. Kindly join. Previous we had Mr. Ashutosh. हेलो, मेरा नाम लवप्रीत कौर है और मैं बीपीए दी स्टूडेंट ऑफ। मेरी कविता का नाम है आत्मनिर्भर। जिए थे अब तक दूसरों के सहारे, अब खुद आगे बढ़कर दिखाना है। जलने वालों से हमें क्या करना, हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जो हम बोला करते थे दूसरों की जुबानी, अब पूरे विश्व को अपनी भाषा सिखाना है। जलने वालों से हमें क्या करना, हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ऐ सोने की चिड़िया, अब तुझे सोने का अंबर बनाना है और अपने विकास से मधुर गीत सबको उड़कर सुनाना है। जलने वालों से हमें क्या करना, हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अब सरकार की दिशा पर सबको चल जाना है और जो चुप से आज तक उन्हें भी बोलकर दिखाना है। जलने वालों से हमें क्या करना, हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वतन के लिए जीते हुए उस पर ही मन मिटाना है। हर लोकल से वोकल हमें बनकर दिखाना है और प्रगति की राह पर उसके ले जाना है। जलने वालों से हमें क्या जलना, हमें आत्मनिर्भर भारत। It was a great performance by Ms. Laprit. I will request everyone to give her a great round of applause again. Once again. So for next we have Mr. Ashish. Kindly join the stage. Good morning to all of you. I hope you all are doing well. So first of all, I introduce myself. My name is Ashish. I am student of film and TV production. So my topic is भारतीय युवाओं का कोई रोल मॉडल है या नहीं। आज देश युवा शक्ति की बात होती है तो सबको पता है कि अगर देश को सुधारना है तो युवा शक्ति को आगे आना होगा, क्योंकि उनमें ऊर्जा है, नई सोच है और ज़्यादा शक्ति है, जिसके कारण वो देश को आगे ले जा सकते हैं। भारतीय के युवाओं के सामने अमेरिका राष्ट्रपति बाराक ओबामा यूनिवर्सल रूप में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन शायद भारत का कोई ऐसा युवा होगा जिसके नज़र में कोई आदर्श होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी के पसंद और नापसंद की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन आदर्श व्यक्ति की जो लोगों के लिए रोल मॉडल और आइडल होता है। हमने इस विषय पर कुछ युवागण और कुछ देश के समाज और आज के युवाओं के बड़े करीब से देखा है। जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं उससे तो यही मतलब निकलता है कि आज की बढ़ती सूचना प्रतियोगिता और नए फेम के चक्कर में देश के युवा के शब्दकोश रोल मॉडल और आदर्श शब्द ही गुम हो गया। आज युवा पीढ़ी दौलत शोहरत को ही अपनी सफलता का मूल मंत्र और मानते हैं और देश को युवाओं के आदर्श पे लोगों हैं और सक्सेसफुल है। और ये बात और भी युवागण किसे सक्सेसफुल मानते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का पत्रकारिता अनुविभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी मंजिल में बेहद ही कम उम्र में पाई है, जिनकी बेबाकी और बातें उनकी छात्र छात्राओं के लिए आदर्श का काम किया करती है। उनका कहना है कि आज का युवाओं के तर्क कहने की शक्ति है, क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया में जा रहा है और उसके पास कोई सवालों का जवाब है। वो तर्क करना जानता है, वो आसानी से लोगों की सुनता नहीं, बल्कि वो लोगों के बताए नुस्खे में अपना अनोखा रास्ता निकालता है, जो कि आगे बढ़ने वाले के लिए जरूरी भी है और सही भी है। युवा का मतलब है कि जोश होता है, जिसका साफ उदाहरण दिल्ली के जंतर मंत्र और दिखाई पड़ा है। हाँ, आज का युवा तुरंत फैसला चाहता है, इसलिए आक्रोशित भी है, लेकिन यह भी दक्षिण है, क्योंकि बदलावी युग की दरकार और प्रादिक्षिक युग जिस दिन में हो जाएगी, आक्रोश कम हो जाएगा। रही बात गुस्से की, युवा का मतलब जोश से ही होता है, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। थैंक यू टू ऑल। मिस्टर आशीष के डेक्लेमेशन ऑन द यूथ इंडिया, इससे स्वामी विवेकानंद की कुछ लाइंस मेरे को याद आती हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि यूथ इज द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री एंड दे आर ग्रेट एसेट टू एनी नेशन एज दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड इनोवेटिव आइडिया। With this, we will start our next performance by Ms. Purnima. Kindly join the stage. Hello everyone. I hope I am audible to everyone. Yes. Okay. Good morning. This is Purnima, first year student from Bachelor of Performing Arts, Vocal Music. Yeah. So my topic of the day is the new she, the futuristic view of an empowered Indian woman.
What do we understand from an empowered woman? Is it the one who is financially independent? Or is it the one who is handling her family situations well? Or the one who can do both? We expect both the things from women, right? For me, it's someone who knows her priority, who knows what she wants in her life and can fight for it. When I think of her, she's working hard every day to prove everyone that she's more than a wife, more than a daughter, and more than a person who needs to prove herself every day. She want to get financially independent so that people can let her live her life the way she wants. I guess most of us females are trying to get financially independent not because we want to support our families, but because we want to support our dreams. We want to be something and we don't want anyone to judge our decisions. When I think of her, I think of a rebel. I see her fighting for herself every day. I see her trying to prove everyone that she is something more than what they think. She is dressing like a man someday to protect herself from this society. Because that's what I do. I dress myself as a man. I wear tomboyish clothes so that people won't judge me of how I look. The future she is not asking for permission from a brother, husband, or her father herself. She is doing what she wants, however she wants, and want to be something that can do, she wants something for her life. She is not someone else's responsibility, and she would never want to be someone else's responsibility. She is not proving to everyone that she is pure like Ganga, because she is aware that she is right, and she knows her rights and wrongs, and what is good for her and not. She don't seek for approvals anymore. She knows she can tell this world to stop being judgmental, but as we all know, we cannot stop the world from judging us. So she started to stop judging herself. She's growing, she knows. And she won't judge herself in the process of growing. I would like to rest my words with the thoughts of Nikita Gill. She once said, "Raise your daughter to shout, to scream, to hold their heads up high from them being themselves. Before society tries to teach them how to silence themselves, how to wear the shame like it's their second skin. Let them taste rebellion from the moment they are born and watch them become flames and start a revolution." Thank you. A powerful performance by a powerful she, Miss Purnima. Thank you so much for your performance. So next we have Miss Sandhya. Kindly join. Hello everyone. Myself Sandhya. I am a student of first year BA Journalism and Mass Communication. I am not here to say what is India and about the political. I am here to tell never judge a book by its cover. We all here to know that everyone judges by our face or dressing sense about our behavior. I am here to tell you about why we everyone judge. मेरा यही क्वेश्चन है आप सबसे कि हम इंसान को उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके रहन सहन से, कि वो क्या करता है, कैसी दिखती है, कैसा दिखता है, उससे क्यों जज करते हैं। 99% स्टूडेंट्स हो या इंडिया में ऐसे हैं कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, मैं इसके पास बैठ नहीं सकता, मैं इसके पास नहीं कर सकता। आई एम राइट, मैं सही हूँ? क्योंकि ये सब आप सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, हम लोग बाहर दोस्तों से मिलते हैं, वो सुंदर नहीं दिखती, चलो यार हम किसी दूसरे दोस्त के पास चलते हैं। सही बोल रही हूँ ना? ये होता है भाई, क्यों होता है? मेरे को इसी चीज़ का जवाब चाहिए, क्यों होता है ये? हमें इसे चेंज नहीं करना चाहिए, हमें इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन कितनी कोशिश हो रही है। मूवीज़ आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, यार उसके साथ बुरा हो रहा है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करा जाता है हम सबके माइंड में, हम सब देखते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी में मैं ये देखा कि वो कश्मीर से वो बुरा होगा या वो बुरी होगी। हमने सिर्फ ये देखा मूवी में कि कश्मीरियों ने ये करा, हमने किसी ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे की रियलिटी क्या थी। सही है या गलत है? मुस्लिम है, उसके तो दिमाग में ये होगा कि हिंदू है तो एकदम गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें उसे जज करा, हमने उसे सिर्फ जज करा कि डिजिटल मीडिया मूवीज में क्या दिखाया जाता है। क्या आपने उसके साथ रहा, क्या आपने उसे देखा कि वो कैसा है? कभी जज करा? नहीं, हमने सिर्फ उसे जज करा कि मूवी है, कश्मीर का है तो वो बहुत गंदा होगा या वो बहुत गलत होगी। ऐसा नहीं होता। सेम होता है कि हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो देखता है कोई एक गरीब है या अच्छे सुंदर कपड़े पहन नहीं रखे होंगे तो यार ये तो गरीब होगा, चलो ये मेरे टकरा गया, बहुत गलत करा यार, मेरे को जाके नहाना है। क्यों?
तुमसे भी अच्छा, तुमसे भी सुंदर कोई होगा, तुम्हें भी कोई गलत कह सकता है, तुम्हें भी कोई बदसूरत कह सकता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ हमें स्टॉप करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं पाकिस्तान, कश्मीर, ये वो, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जब इक्वल नहीं हो सकते, एक ह्यूमैनिटी नहीं आ सकती, तब तक ये कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता अपने देश से। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तो प्लीज़ स्टॉप इट। थैंक यू सर। So with Ms. Sandhya's performance, we are over with the performances. I would like to say that it was great to have you all guys here. It was great to hear you all, your views, your stories, your poems, your declamation and your points. So with this, we will like to end this event, and thank you all for being here today and taking the time to patiently listening